તારીખ 28/12/1994 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 60। સરળતાના દુરુપયોગ કોઈ કરે એમ જ હશે ને। પ્રશ્ન પૂછનારની અપેક્ષા બીજી હોય તો બોલી શકે છે કે આમાં શું પૂછવા માગે છે। મોક્ષાર્થી જીવના પૂર્ણતાના લક્ષણા ધ્યેયને હાનિ પહોંચતી હોય। હવે સરળતાનો જે દુરુપયોગ છે એ બાહ્ય સંયોગ આશ્રિત છે અને પૂર્ણતાના લક્ષ્ય અથવા ધ્યેય છે તે અંતરંગ જીવના પરિણામ છે। આ પરિણામો એવા છે કે જેને બાહ્ય પ્રતિકૂળતા સાથે રૂકાવટનો સંબંધ નથી। આ એક માર્ગ જ એવા પ્રકારનો છે કે જેને અનુકૂળતા ફસાવી શકતી નથી અને પ્રતિકૂળતા જેને હાનિ પહોંચાડી શકતી નથી। ઉલટાનો પ્રતિકૂળતાના સમયમાં જીવનો પુરુષાર્થ વિશેષ પ્રમાણમાં યોગ્યતાને કારણે પાત્રતાને કારણે વૃદ્ધિગત થાય છે એવું બને છે। એટલે ફરીથી हिंदी में कहिए तो कि हमारी सरलता का कोई दुरुपयोग करता है या हमको प्रतिकूलता देता है। हम सरल रहते हैं तो ज्यादा प्रतिकूलता हो जाती है, तो इसलिए हमारे लक्ष्य को या ध्येय को हानि पहुंचती हुए तो क्या करें। वास्तव में ऐसा नहीं बनता है। हमारी सरलता से हमें लाभ है, दूसरा इसके सामने प्रतिकूलता देता है तो उसको नुकसान है, और इसके कारण से हमारे परिणाम बदल जाए ऐसा नहीं होता। हमारे परिणाम बदलते हैं वो हमारे कारण से बदलते हैं, दूसरे के कारण से हमारे परिणाम बदलते हैं वो वस्तु का स्वरूप में नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। આપણે સરળતા રાખવી જોઈએ, પરંતુ અન્ય જીવો આપણી સરળતાનો દુરુપયોગ કરતા હોય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? પ્રશ્ન તો એક જ વ્યક્તિનો છે અક્ષર જોતા, અને લગભગ એક જ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે કે हमें सरलता रखनी चाहिए, परंतु अन्य जीव अपनी सरलता का दुरुपयोग करते हो तब हमें क्या करना चाहिए? वो दुरुपयोग करते हैं तो उनको नुकसान है, अपनी सरलता से अपने को नुकसान नहीं है, अपने को तो लाभ ही होता है। बाह्य में कभी नुकसान हो सकता है तो जितना अपनी सहन शक्ति हो उतना तो सहन करें। सहन नहीं करके उनके प्रति द्वेष करे ऐसा उपदेश तो नहीं दे सकते हैं। वो कृपालु देव को ऐसा एक विचित्र प्रश्न गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने ऐसा प्रश्न रखा कि हम एक बंद कमरे में हैं और बंद कमरे के किवाड़ के पास, दरवाजा के पास एक सर्प आ गया है। अब हमको कमरे के बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, दरवाजे के पास तो वो बैठा है। अब वो हमको काटना चाहता है, हम उसको काटने दें या हम उसको मार दें? हमारे बचने के लिए तो मारने के सिवा कोई इलाज नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए? ऐसा एक प्रश्न रखा है। तो कृपालु देव उत्तर देते हैं कि किसी जीव को खून करके, मार करके
अपने आप को बचा लें, ऐसा उपदेश तो हम नहीं दे सकते। किसी को मार करके, उसका प्राण हरण करके हम अपना बचाव करें, ऐसा उपदेश तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये काम तो इस ऐसे प्रकार के परिणाम से तो नरक में जाने का फल आता है। किसी के अगर किसी का कोई प्राण हरण करता है, खून करता है, तो इसके फल में तो नरक में जाएगा। तो ऐसा उपदेश तो कैसे देंगे। अब बात ફરીથી સત્પુરુષને શોધ, પરંતુ ભારતમાં 80 કરોડની વસ્તી છે અને દરેકનો પરિચય કરીને સત્પુરુષને શોધીએ તો અમારું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, તો સત્પુરુષને ગોતવાની શું રીત છે, સત્પુરુષને કેમ શોધી શકાય। હવે પાણીની તરસ લાગે ત્યારે આવો પ્રશ્ન ઉઠે ખરો। ક્યાંક આપણે રણમાં આવી ચડ્યા હોઈએ અને ક્યાંય પાણી દેખાતું ન હોય ને પાણી ખૂટ્યું હોય અથવા પાણીની જરૂર પડી હોય ને પાણી ન હોય તો શું કરીએ? પાણીની શોધ કેવી રીતે કરીએ? કોઈ મરવાનું તો પસંદ કરતા નથી કે ભલે પાણી વગર મરી જઈએ, પણ હવે અહીંયા પાણી દેખાતું નથી તો ભલે ને અમે પાણી વગર મરી જઈએ, એવી રીતે કોઈ રહી શકે ખરા? તો પહેલા તો એટલી તૈયારી છે કે નહીં એટલું નક્કી કરવું, પછી આ પ્રશ્ન નહીં મૂંઝવે 80 કરોડની વસ્તીનો। ખરેખર જેને જરૂરત લાગે છે એને મળી રહે છે। સુગાનીજીનો દ્રષ્ટાંત પ્રત્યક્ષ છે। દિગંબર સંપ્રદાયમાં એમનો જન્મ હતો। ઘણા દિગંબર સાધુ અને આચાર્યો પણ વિચરે છે, વિદ્યમાન છે, છતાં પણ એ કોઈની પાસે ગયેલા નહીં। અને કુદરતની કોઈ એવી ઘટના થઈ કે દોડીને સોનગઢ આવ્યા અને મોક્ષ માર્ગ પામી ગયા। તો એ રીતે જીવને પેલા પોતાની કેટલી તૈયારી છે, કેટલી જરૂરત લગી છે એ તપાસવાની જરૂર છે। પછી 80 કરોડમાંથી 80 કરોડને કાંઈ મળવાની જરૂર નથી, પણ ખાસ કરીને જેઓ અધ્યાત્મ તત્વના ક્ષેત્રની અંદર પ્રસિદ્ધ હોય કે અપ્રસિદ્ધ હોય એ ક્ષેત્રની અંદર થોડું આવાગમન કરવું જોઈએ અને એ ક્ષેત્રની અંદર કોઈ એવી વ્યક્તિ મળે કે નહીં એની શોધખોળ કરવી જોઈએ। એ ક્ષેત્ર બહુ મોટું નથી, ભારતનું અધ્યાત્મ ક્ષેત્ર એટલું મોટું નથી, અધ્યાત્મના વિષય બહુ ઓછા માણસો પાસે હોય છે, આગમનો વિષય ઘણા પાસે હોય છે, પણ અધ્યાત્મનો વિષય બધાની પાસે નથી હોતો। અને એટલું જરાક જુદું તારવતા શીખીએ તો બહુ ક્ષેત્ર ઘણું નાનું લિમિટેડ થઈ જાય છે। અને તેમ છતાં માનો કે કોઈ સત્પુરુષ ન હોય ને ન મળે, એવું પણ બનવા જોગ છે કે હાલમાં સત્પુરુષ છે નહીં તો મળવાના નથી, એવી પણ પરિસ્થિતિ માનો કે હોય, તો પણ તમને શોધવાના પરિણામથી જે કર્મ બંધન થશે એના ફળમાં તમે સત્પુરુષના યોગમાં વહેલા મોડા આવ્યા વિના નહીં રહ્યો। એવી એક કુદરતની વ્યવસ્થા કર્મ સંબંધીની છે। આ તો કર્મની કાયદો થિયરી છે, એટલે તમને નુકસાન નથી, પણ 80 કરોડનો બોજો લઈને અત્યારથી પડતું મૂકવા માંગતા હો કે મૂકો ને માથાકૂટ, હવે આ 80 કરોડમાં કોને ગોતશું આપણે, તો એ પરિણામ તો બરાબર નથી પ્રશ્નકારના, એમ કહેવું જોઈએ। मेहरबानी करके एक टाइम समय साधी शास्त्र पर प्रवचन करें। ठीक है, करेंगे। अब ये समय सार शास्त्र पर ही चलता था, लेकिन अलग अलग मुमुक्षुओं की अलग अलग डिमांड आती है, सभी की डिमांड के लिए तो पूरा समय नहीं है। समय सार भी चलेगा, थोड़ा और भी चलेगा। अपने को तो ये देखना है कि हमको हमारा लाभ का विषय चलता है कि नहीं चलता है।
समय सार का तत्व कोई अलग होता है, कृपालु देव के वचनामृत का कोई अलग होता है, या किसी भी ग्रंथ का कोई अलग होता है, ऐसा तो नहीं होता है। अब आपको पर्टिकुलर ग्रंथ से मतलब है या इसके विषय के साथ मतलब है, वो आपको सोचना है। हम तो तत्व के लिए आए हैं। किसी भी वचनों से अगर हमें तत्व मिलता है तो हम इधर से ही लेना है, ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तत्व तो बदलता नहीं है। चाहे समयसार पढ़ो, चाहे अन्य आचार्य का ग्रंथ पढ़ो, चाहे अन्य ज्ञानी का वचनामृत के पढ़ो, तत्व तो कहीं बदलता नहीं है। सभी एक ही अभिप्राय से एक ही बात को अपनी अपनी पद्धति से कर रहे हैं। अब ये बात अवश्य है कि पद्धति हर एक के अलग अलग है, तो हमको पद्धति का व्यामोह नहीं होना चाहिए कि यही पद्धति हमको अनुकूल लगती है। सभी ज्ञानियों की सभी प्रकार की पद्धति बहुत सुंदर है और बहुत मौलिक है, इसलिए हमें इसकी मौलिकता को और सुंदरता को अनुभव में लेना चाहिए और न किसी के शैली के प्रति राग करना चाहिए, न किसी के शैली प्रति द्वेष करना चाहिए। यही हमारा कार्य है। पात्रता लाववा माटे શું કરવું? મુમુક્ષુતા થવામાં સૌથી પહેલા શરૂઆત કેવી રીતે કરવી? पात्रता लाने के लिए और सबसे पहले शुरुआत करनी हो तो हमारा अनंत भव भ्रमण का जो बोझा है उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। यहाँ का मनुष्य भव का काल बहुत अल्प है और अनिश्चित है, अल्प भी है और अनिश्चित भी है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अगर हमको हमारे संयोग की चिंता रहती है, इससे अनंत गुण हमको भव भ्रमण की चिंता आनी चाहिए, तब पात्रता चालू होगी। जिसको भव भ्रमण की चिंता नहीं है और तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनको वो तत्व ज्ञान का अभ्यास सार्थक नहीं होता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखने में आते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास के क्षेत्र में बहुत से जीव है, लेकिन बहुत से जीव इसमें निष्फल क्यों है, सफलता को क्यों प्राप्त नहीं हुए? यही कारण है कि इनका जो प्रवेश है वो यथार्थ रूप से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए। इस विषय पर काफी अपने स्वाध्याय में चर्चा भी हो चुकी है। सुबह के स्वाध्याय में आया था कि 12वें गुणस्थान तक सत्पुरुष के वचनों का अवलंबन रहता है। यह तो निर्विकल्प रूप दशा के गुणस्थान है, इनको तो निज शुद्धात्मा का ही अवलंबन रहता है। कृपया दोनों बातों का समन्वय कैसे हो, खुलासा करें। नहीं, प्रश्न तो ठीक है कि 7वें से 12वें तक का तो निर्विकल्प अवस्था है और कृपालु देव लगते हैं कि 12वें गुणस्थान के अंत तक श्रुत का अवलंबन है। श्रुत मैंने ज्ञानी का, वाणी का, सत्पुरुष के वाणी का अवलंबन है। वो कैसे कि वो 7वां आया कहां से? 7वां के पहले जो पहला चतुर्थ आया वो भी कहां से आया? वो मूल की बात है कि जिस नींव पे 12वां गुण स्थान आया, उस नींव में फाउंडेशन का जो स्टोन है वो सत्पुरुष का वचनामृत का आलंबन है। अगर सत्पुरुष का वचनामृत नहीं मिला होता तो जो चतुर्थ गुण स्थान आता, फिर 12वें आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ वो कहने का अभिप्राय नहीं है कि 12वां गुण स्थान में भी वो शास्त्र पढ़ते हैं, कोई सत्पुरुष के वचन को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है।
सातवें गुण स्थान से तो मुनि पद है, आचार्य पद है, कोई उपाध्याय पद में है, कोई आचार्य पद में है, कोई मुनिराज के पद में है। तो सत्पुरुष का वचनामृत इनको तो पढ़ने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता कि वो सत्पुरुष के ज्ञानी के वचनामृत को स्वाध्याय करे। वो पूर्वाचार्यों के शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन वो भी सविकल्प दशा में, छठे गुण स्थान में। सातवें से तो आगे की कोई वो बात नहीं है। लेकिन वो दशा हुई कहां से, आई कहां से, ये कहने का वहां अभिप्राय है। वो बात चली थी, हमको भी विकल्प हुआ था, लेकिन वो बात खोलने की रह गई। अच्छा हुआ ये प्रश्न आया। 13वां जो गुण स्थान है केवल ज्ञान का, जो सिद्ध अवस्था है उसका भी मूल वही सत्पुरुष का वचन, वही सिद्ध पद का मूल वही है। 12वें तक ही क्यों कहो, 13वें सिद्ध तक कहो, क्यों अपेक्षा से जो अपेक्षा आपने बोली है। नहीं, उसमें वो बात वो है, उनको कहने का, जो कृपालु देव को जो कहने का मकसद है वो हमको कि साधक अवस्था है, इनकी चरम सीमा तक वो बात है। फिर तो जो अवस्था है साध्य अवस्था आ गई, फिर साध्य अवस्था की चर्चा क्या करें। जैसे आचार्य महाराज ये कहेंगे कि नई जो है वो तो साधक अवस्था में है, फिर तो नई को लागू करना नहीं है। जहां मोक्ष हो गया वहां तो नई की प्रवृत्ति है ही नहीं, वहां तो केवल ज्ञान है, उसको केवल प्रमाण कहने में आता है, लेकिन नई की प्रवृत्ति वहां नहीं है। तो उस तरह से जो बात होती है उसका सारांश या उसका अभिप्राय लेना पड़ता है। 13वें गुण स्थान क्या, सिद्ध पद का भी आधार सत्पुरुष का वचनामृत है। बात तो मूल में यही है, लेकिन वो बात कहने की आवश्यकता नहीं है। साधक दिशा की जो चरम सीमा है वहां तक कोई पहुंच जाते हैं, तो यही कारण है, ऐसा कहने का मतलब है। बाकी का तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः ही है। फिर तो एकदम शब्दार्थ, हाँ, अकेले शब्द को वहां नहीं पकड़ना चाहिए, वहां उस कहने वाले का अभिप्राय को पकड़ना। आशय का अवलंबन बताया है श्रीमद जी ने एक पत्र में बताया है कि 12वां गुरुस्थाना अंतिम समय तक सत्पुरुष का आशय का अवलंबन रहता है। आशय का अवलंबन, तो आशय तो जो है सो है। आशय तो वो है कि कैसे वितरागता प्राप्त हो जाए, वही आशय है। तो उसी आलम्बन से तो साधक दशा की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं, तो वो बात तो ठीक ही है। यहाँ पर सत्पुरुष का अर्थ निज शुद्ध आत्मा किया जाए, इसमें क्या ऐतराज? अब प्रकरण तो वो चल रहा है निज सत्पुरुष का, तो अर्थघटन हम प्रकरण तो अन्य सत्पुरुष का चल रहा है। वहां जो प्रकरण चलता है उसी को अनुसरण करके अर्थघटन करेंगे या दूसरी अपेक्षा लगाएंगे। कोई भी शब्द का अर्थघटन तो प्रकरण अनुसार होगा ना, प्रकरण को छोड़ करके तो शुद्ध स्वभाव वाले सत्पुरुष का चल रहा है, ऐसे में ऐसा लगता है हमको। तो यह जो प्रकरण है, देखिए अपन देखो, बढ़िया। अच्छा, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के अंतिम समय तक वीतराग ने सत्पुरुष के वचनों का आलम्बन का विधान किया है। अब निज सत्पुरुष लियो तो वचन व्यवहार कहां से आएगा? निज सत्पुरुष का तो वचन व्यवहार होता नहीं, पर सत्पुरुष का ही वचन व्यवहार होता है। तो निज सत्पुरुष को तो ले नहीं सकते ना। बात तो बहुत क्लियर लिखी हुई है, एकदम साफ लिखी हुई है। शब्द सत्पुरुष का उपदिष्ट मार्ग, तो वो भी अन्य सत्पुरुष के लिए लागू होता है। निज सत्पुरुष का उपदिष्ट मार्ग कहाँ रहता है? निज का तो उपदेश होना होता नहीं है, उपदेश तो अन्य गुरु का ही होता है, आधारभूत है।
अर्थात 12वें क्षीणमोह गुण स्थान के पर्यंत श्रुत ज्ञान से आत्मा के अनुभव को निर्मल करते करते उस निर्मलता की पूर्णता का प्राप्त होने पर केवल ज्ञान होता है। तो श्रुत ज्ञान से तो द्रव्य श्रुत जो है वो ही सत्पुरुष का वचन है। श्रुत ज्ञान मैंने द्रव्य श्रुत ज्ञान तो सत्पुरुष का वचन है। भाव श्रुत के कारण से निकले हुए वचन को द्रव्य श्रुत कहते हैं। और उसके निमित्त से आत्मा के अनुभव को निर्मल करते करते तो अनुभव को नहीं छोड़ा है, लेकिन वो अनुभव आया कैसे कि श्रुत ज्ञान से आया। तो बात तो साफ हो गई कि मूल में जो अनुभव हुआ है वो श्रुत ज्ञान के कारण से हुआ है। निर्णय भी श्रुत ज्ञान के कारण से होता है। 144 में क्या लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, वही सम्यक दर्शन का मूल कारण है। तो सम्यक दर्शन का मूल कारण जो निर्णय है वो श्रुत ज्ञान का निमित्त से होता है। वो तो आचार्य श्री खुद कहते हैं। आचार्य श्री ने वहां निमित्त को बीच में डाल दिया। अमृतचंद्र आचार्य ने श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत को बीच में डाल दिया। द्रव्य श्रुत को कोई द्रव्य श्रुत का कहने वाला सत्पुरुष को, एक ही बात हो गई ना। हाँ, आचार्य ने ऐसा नहीं किया कि निर्णय अपने आप करता है, ऐसा नहीं किया। एक एक शब्द के पीछे गंभीरता है आचार्य श्री के भी। ऐसा नहीं कहा कि अपने आप निर्णय कर लेना, द्रव्य श्रुत के द्वारा किया। वहां द्रव्य श्रुत का क्यों किया? क्यों कि अज्ञानी का वाणी से कभी किसी को निर्णय भी नहीं होता, सम्यक दर्शन होने का सवाल नहीं होता, इसलिए द्रव्य श्रुत लिया है वहां। और बिना द्रव्य श्रुत भी किसी को नहीं होता, ये भी बात है। और अज्ञानी की वाणी से भी नहीं होता, ये भी बात है। बात तो एकदम साफ है। फिर इसमें कृपालु देव का एक ऐसा और वचन आता है, विनय करे भगवान। हाँ ठीक है। तो इसकी मैचिंग उससे बैठती है कि 12 गुण स्थान तक तो उनके वचनों का अवलंबन रहता है। तो जब वचन का अवलंबन समाप्त हो जाता है और 13 गुण स्थान केवल ज्ञान हो जाता है, तब वो उनकी विनय करते हैं सत्पुरुष की। ऐसा इसका सेटिंग इससे बैठ सकता है क्या है? गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ ऐसा किया कि जब कोई केवली होते हैं कि जिस केवली के केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोग झलकते हैं, तो उसमें छद्मस्त अवस्था में जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा जो हमारा छद्मस्त गुरु है उसका भी ज्ञान आ जाता है, चाहे वो पूर्व भव में हो, 10 भव के पहले भी हो या वर्तमान भव में हो, लेकिन केवल ज्ञान में वो बात सामने आती है। वही इसका विनय है, वही इसका विनय है, वही इसका विनय है कि हमारे गुरु वो थे, यहाँ से हमको मार्ग मिला। इसके पहले अनंत काल हम भटके, हमको मार्ग नहीं मिला था। ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान इसका नाम विनय करे। इसका नाम गुरुदेव ने ऐसा अर्थ किया है, आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रवचन में ऐसा अर्थ किया है। और कोई लोग ऐसे भी अर्थ करते हैं, क्योंकि शब्द को तो मालूम नहीं कि अर्थ हमारा अर्थ क्या है, लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। तो कोई ऐसा करते हैं कि विनय इतना बड़ा महान है कि वो भगवान को, इसको इसका फल में जीव भगवान हो जाता है। विनय कर्ता और भगवान इसका कार्य, विनय करे भगवान, ऐसा भी कोई अर्थ करते हैं। तो ठीक बात है, चलो जैसा जिसको ध्यान में विचार में आया ऐसा अर्थ घटन कर सकते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रवचन है, उसमें गुरुदेव ने तो हमने कहा ऐसा अर्थ घटन किया है। दूसरे से तीसरा संकेत जब होता है तो ज्ञान और वीर्य गुण में परिवर्तन होता है। श्रद्धा और चारित्र गुण का वहां काम नहीं है, इसे पुनः स्पष्ट कीजिए। उसमें श्रद्धा तो मिथ्या रहती है, श्रद्धा सम्यक उस वक्त नहीं होती है, लेकिन मंद मिथ्यात्व होता है। उतना कार्य श्रद्धा गुण के परिणमन में होता है कि दर्शन मोह का अनुभाग
एकदम कट जाता है। उपशम के योग्य होने की अवस्था वहां से प्राप्त होती है। उतना फर्क अवश्य पड़ता है। श्रद्धा में दर्शन का अनुभाग बहुत पतला हो जाता है। हाँ, उसी की बात चलती है, वही बात चलती है। तो वहां श्रद्धा सम्यक नहीं होती है। वो तो स्वानुभव के काल में सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा है वो मिथ्या छूट करके सम्यक हो जाएगी। लेकिन दूसरे संकेत के काल में मंद मिथ्या तो होता है और अधिकतर मंद होते जाते 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 वो बिल्कुल उपशम हो जाएगी। ताकत इसकी टूट जाएगी, ये उपशम हो जाएगा। मिथ्या तो उपशम होने से उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति बोलने में आती है। चारित्र गुण में कषाय रस टूटता जाता है और बहुत कषाय रस टूट करके फिर जब अनुभव होता है तो अनंतानुबंधी का उदय समाप्त हो जाता है और वहां स्वरूप आचरण चारित्र की प्राप्ति तीसरे सम्यक दर्शन में प्राप्त होती है। इसके पहले जो चारित्र गुण के परिणमन है उसमें विकल्प है। वो विकल्प भी आत्मा का निश्चय शुद्ध पद है, उसी के ही विकल्प होते हैं। लेकिन वो विकल्प पतले 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 रस के बनते जाते हैं। उस तरह उनकी जो श्रेणी है वो उन्नति क्रम की रहती है। फिर भी जहां तक विकल्प है वहां तक निर्विकल्प को बाधा है। ऊपर से देखे तो विकल्प बाधक है, नीचे से देखे तो यही विकल्प पतला होकर के सूक्ष्म होकर के एक ऐसा अवसर आएगा कि उसका उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। जब उत्पन्न होना बंद हो जाएगा तब निर्विकल्प दशा आ जाएगी। उसी को हम स्वानुभव, स्वरूपाचरण और सम्यक दर्शन ऐसा तीनों नाम दे सकते हैं। ज्ञान तो आत्मसन्मुख हो ही गया है। निर्णय के काल में आत्मसन्मुख ज्ञान हो गया है। हमने इस विषय की सूक्ष्मता की चर्चा करने के लिए गुरुदेव के पास इस बात को छेड़ी थी। हम एकांत में गए थे एक दिन, कई दफे हम जाते थे गुरुदेव के पास, ऐसे एक दफे इस चर्चा को लेकर के भी हम गए थे। तो हमने ऐसा ही प्रश्न रखा था जैसा प्रश्न हमारे सामने आया कि श्रद्धा की क्या, हमने चारित्र का प्रश्न नहीं रखा था, श्रद्धा की क्या स्थिति है। तो बोले कि श्रद्धा तो मंद होने जा रही है। फिर हमने एक दूसरा प्रश्न भी उठाया था, वो ऐसा उठाया था कि सम्यक ज्ञान होने से ज्ञान जात्यांतर होता है। तो ये सम्यक सन्मुख ज्ञान हुआ, वो जात्यांतर हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रश्न हमने रखा था। इस भाषा में हमने रखा था। तो गुरुदेव बोले कि ऐसे तो प्रधान रूप से बोलना नहीं चाहिए, या ऐसा कहने से किसी को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जात्यांतर तो वहां से हुआ ही है। हाँ, ऐसा बोले थे। वहां से फेरफार हो गया है, ज्ञान में तो वहां से फेरफार हुआ है। और वही ज्ञान स्वानुभव के काल में जात्यांतर बोला जाता है। वो आगम पद्धति से ऐसा ही बोलना चाहिए, लेकिन सूक्ष्मता से देखे तो जब से सम्यक सन्मुख हुआ है वहां से ज्ञान बदल गया है। और ज्ञान का जो प्रोसेस है वो एक न्याय से, जैसे ज्ञानी का ज्ञान का प्रोसेस है, ऐसा ही सम्यक सन्मुख वाला ज्ञान का प्रोसेस चलता है वेद ज्ञान में। ठीक इसी प्रकार का वेद ज्ञान चलता है उसको, जो ज्ञानी के सविकल्प दशा में चलता है। उनको भी शुभाशुभ का निषेध आता है जैसे ज्ञानी को आता है। तो ऐसा गुरुदेव ने जो उत्तर प्राइवेट में दिया वो उत्तर कभी वो जाहिर में नहीं देता। इसलिए हमको भी जाहिर में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो हमने कर दी। ये बात कुछ पात्र जीवों के समझने के लिए होती है, वरना किसी को नुकसान इसलिए होता है कि शास्त्र पढ़ करके विद्वान लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हम भी सम्यक सन्मुख हैं अभी, इसलिए हमारा ज्ञान भी जात्यांतर हो गया। ये
खाने पर उसको कर्ण लब्धि में मान लिया जाए? करण लब्धि नहीं है, करण लब्धि के परिणाम ही अलग है, वो तो सूक्ष्म परिणाम है। ये स्वभाव सन्मुख परिणाम तो ग्रहण पकड़ने में आता है, ज्ञान में पकड़ा जाता है। करण लब्धि के परिणाम केवल ही पकड़ सकते हैं, खुद नहीं पकड़ सकता। और वो जो है वो तो सम्यक दर्शन के पहले कुछ सेकंडों की बात है, जबकि सम्यक सन्मुखता तो घंटों तक, महीनाओं तक, दिनों तक चलती है। तो दो बात एक नहीं है। ऐसा ही वर्णन है कि 4 लब्धि जी को अनंत बार हुई है। 4 लब्धि तो अनंत बार हुई है। तो 4 लब्धि हुई तो वो स्वभाव सन्मुख तो आ गया। नहीं 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 नहीं, आप लब्धि को नहीं समझे। एक दफे भी स्वभाव सन्मुख आ जाता है, वो सम्यक को प्राप्त हो जाता है। दूसरा संकेत मिला, तीसरा उसको मिल ही जाएगा। उसे कौन सी लब्धि माना जाए? उसे कौन सी लब्धि माना जाए? नहीं, वो लब्धि का विषय नहीं, वो प्रकरण अलग है, वो प्रकरण अलग है। लब्धि का प्रकरण वहां लागू नहीं होता। लब्धि के परिणाम इसके नीचे के है, समझ लो आप। जो दूसरा संकेत है उसके नीचे के लेवल के परिणाम है, वो अनंत बार आए, अनंत बार गए। ये पूर्वानुपूर्व है, ये स्वरूप निर्णय अपूर्व है, स्वरूप की पहचान कोई अपूर्व है, ऐसी बात है। तो प्राय लब्धि का और कर्ण लब्धि का बीच का माना जाए? नहीं नहीं, कोई नहीं। प्राय चारों से आगे है, बीच का भी नहीं है, चारों से आगे। प्राय लब्धि अनंत बार आई, करण लब्धि तो पीछे के सेकंडों की बात है। वो आई तो अनुत्तर समय में, अनंतर समय में, एक समय बीच में नहीं रहता, समय दर्शन हो जाता है। ये प्रायोग लब्धि के बाद की और कर्ण लब्धि से पूर्व की अवस्था हुई। हाँ, पूर्व की अवस्था, लेकिन लब्धि का प्रकरण में वो नहीं आता है। अवस्था तो बीच में आती है, वो ठीक बात है, लेकिन उस प्रकरण से उसका जोड़ने का कोई मतलब नहीं मन है। काल समझ लो तो ठीक बात है कि बीच का काल है, बाकी कोई लब्धि के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लब्धि का प्रकरण तो पहला संकेत से पूर्व का है। लब्धि का प्रकरण तो वास्तव में अगर लब्धि के प्रकरण से देखें, हाँ, तो पहले संकेत के पूर्व का प्रकरण है। हाँ, तो पहले संकेत में ही ये बताया, पहले संकेत में भी नहीं है वो तो। प्रकरण पहले का हो गया। हाँ, लब्धि का प्रकरण, चारों लब्धि का तो पहले संकेत के पहले की बात, वो भी ठीक है। वीर्य गुण की क्या पोजीशन था आपके? एक बात है। हाँ, वीर्य भी स्वसन्मुख परिणमन कर रहा है, आत्मा का सन्मुखता का पुरुषार्थ चलता है। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं, आपको बताएं कि सम्यक विकल्प करते करते निर्विकल्प नहीं होते, लेकिन सम्यक सन्मुखता में आगे बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ का कोई तबक्का ऐसा आता है, ऐसा स्टेज आता है, जिस कारण से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। एक प्रश्न चला है, गुरुदेव का वचनामृत है 446 446। प्रश्न किया है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, परंतु कैसे करना पुरुषार्थ नहीं उपड़ता है। ये हमारे मुमुक्षु की समस्या हो गई है गुरुदेव के टाइम से, कि हमको तो साक्षात्कार करना है। आप जब आत्मा का साक्षात्कार का इतना फल बताते हैं, इतनी महिमा करते हैं, तो हमको भी करना है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, क्या करें। ये वीर्य गुण का प्रश्न है। उत्तर, चैतन्य स्वभाव की महिमा कोई अचिंत्य है, ऐसे अंदर से महिमा आवे तो स्व तरफ का पुरुषार्थ उपड़े। वो महिमा कब आती है? भाव भाषण से आती है। जैसा महिमावंत पदार्थ है वैसा का वैसा भाषित हो जाए भाव में, ज्ञान भाव में, तो महिमा उपड़े, अंदर से महिमा आवे वो। और वो अचिंत्य पदार्थ है और इसकी महिमा भी अचिंत्य आवे, चिंतन में नहीं समाये, वो विकल्प में नहीं समा सकती वो। वास्तव में
तो जो पर्याय परलक्षी है उसको स्वलक्षी करना, उसमें महान पुरुषार्थ है। लक्ष्य कब होता है? भाव भाषण होता है तब लक्ष्य होता है। तो जब पर्याय जहां तक परलक्षी है, कितना भी शास्त्र ज्ञान करो इसका फल कुछ नहीं है। और निर्णय के काल में स्वलक्ष्य होता है, स्वरूप का लक्ष्य होता है, उसमें महान पुरुषार्थ है, क्योंकि वहां वीर्य गुण सन्मुख हो गया। यहां भाषा भले संक्षिप्त कर दी है कि द्रव्य तरफ बल, ध्रुव तरफ बल, ऐसी भाषा बहुत संक्षिप्त और शैली की है। शैली मैंने सरल की है, परंतु उसमें पुरुषार्थ महान है। अंतर्मुख होने में पुरुषार्थ महान है। जीव भले शास्त्र ज्ञान करे, शास्त्र ज्ञान की धारणा करें, परंतु पर्याय को स्वलक्ष्य में वालना, अंदर में वहां झुकाना, यह पुरुषार्थ अनंत है, महान अपूर्व पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ आगे बढ़ करके अनुभव को ले आता है। विकल्प आगे बढ़ करके अनुभव को ले आता हो तो विकल्प बढ़ जाना चाहिए, विकल्प मुख्य हो जाना चाहिए, जबकि विकल्प तो मर जाता है। इसलिए वो विकल्प का साधन नहीं है, पुरुषार्थ का साधन है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। वीर्य गुण से शुद्ध होने पर जो शक्ति प्रकट होती है, वीर्य गुण में आंतरिक शुद्धि प्रकट हुई, सम्यक्त हो गया तब तीसरा परमार्थ सम्यक्त। और जो दूसरा सम्यक्त है उसमें जो वीर्य गुण की आंतरिक उसमें दिशा बदली दिशा बदली। हाँ, वीर्य गुण में क्या है, शुद्धि अशुद्धि का प्रॉब्लम नहीं है। वीर्य गुण के परिणमन में शुद्धि अशुद्धि की समस्या नहीं है। वीर्य गुण में दिशा की समस्या है। वीर्य तो वीर्य है, वेग तो वेग है, लेकिन जो उल्टा जाता है वो नुकसान करता है, सुलटा जाता है वो लाभ करता है। तो वहां तो दिशा का ही कीमत है। बहुत से जीव पुरुषार्थवंत होते हैं, उद्यमवंत होते हैं, संसार का उद्यम करते ही है, लेकिन उल्टा करते हैं, बहुभ्रमण बढ़ता है उससे। तो उसकी दिशा बदली, उस निर्णय के काल में बदली, स्वरूप लक्ष्य के काल में बदली, और यही आगे बढ़कर के वीर्य का अंश अनुभव ले आएगा, स्वरूप रचना कर देगा। आत्मा प्राप्त करने के लिए सरलता जरूरी है। आत्मा प्राप्त करवा सरलता जरूरी है। साधर्मी भाई बहन બહાર રાખી, આદરમી ભાઈ બહેન બહાર રાખી પોતે સત્સંગથી સ્વતંત્રથી સત્સંગ કરે છે, તે છળ કપટ કહેવું કે સરળતા કહેવી? કોઈ વ્યક્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને પ્રશ્ન છે। મારી વિનંતી છે કે કોઈ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન नहीं करे। हाँ, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करें, ये हमारे आउट ऑफ डिसिप्लिन है। किसी व्यक्ति के लक्ष्य में रख करके हमें चर्चा नहीं करनी है। एक्शन विदाउट रिएक्शन वही सरलता है। सरलता का रिएक्शन में यदि क्रोध, मान, माया या लोभ पैदा हो जाए तो वह सरलता कृत्रिम है। तो प्रश्न तो नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है अपने आप में। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। यह आत्मभ्रांति रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लिए अर्थात मिथ्या दृष्टि के लिए कथन है, क्योंकि आत्मभ्रांति का रोग मिटाने के लिए ही
यह औषध विचार और ध्यान का दिया है, ऐसा लगता है। क्या लिखा? ऐसा लगता है। कृपया स्पष्ट कीजिएगा। कल आपने बताया था कि यह सम्यक दृष्टि के लिए है। हाँ, ध्यान तो सम्यक दृष्टि के लिए होता है। तो जो औषध लेता है उसमें पहले विचार आता है और बाद में उस औषध में आगे बढ़ने के लिए ध्यान आता है। उतनी सी बात है। आत्मा में एकाग्र होना ये भी एक औषध है और आत्म कल्याण का विचार होना यह भी एक औषध है। तो औषध में आगे जाकर के क्या क्या औषध लेना होगा यह बात बता दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को भी ध्यान होता है, ऐसा अर्थ यहाँ से निकालना नहीं चाहिए। रोग मिटाने के लिए औषध है। हाँ, रोग मिटाने के लिए औषध है। हाँ, रोग मिटाने के लिए औषध है, लेकिन कोई ध्यान उस भूमिका में भी होता है, वो बात तो वहां लागू नहीं होती है। हाँ। कभी कभी ध्यान काव्य में तो सब प्रकार का खुलासा नहीं मिल सकता है लिखने वाले का। जो काव्य होता है उसमें तो अभिप्राय के अनुसार कहीं बातें लिखी जाती हैं। तो जितना स्पष्टीकरण देना चाहे वो वक्तव्य में देना चाहते हैं, गद्य में दे सकते हैं, उतना पद्य में नहीं दे सकते। उसमें बात संक्षिप्त हो जाती है कभी कभी। सत्पुरुष प्रत्ये અત્યંત ભક્તિ ક્યારે પ્રગટ થાય? સામાન્ય ભક્તિમાંથી અપૂર્વતા કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય? सत्पुरुष ने प्रत्ये अत्यंत भक्ति तो ओळखाण थाय, पहचान आवे तब ही उत्पन्न होती है। उसके पहले उतनी अत्यंत भक्ति होनी चाहिए, उतनी क्वालिटी में नहीं होती है। कभी क्वांटिटी में अत्यंत होती है, तो अगर निष्कामता होती है तो होती है। निष्कामता माने क्या? कि इस भक्ति के अवेजी में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भक्ति तो इनकी महानता के कारण से करते हैं, लेकिन महानता पहचानने में आए और परिणाम जो हो, और नहीं पहचानने में आए इसमें जो परिणाम है उसमें जो अंतर रहता है वो रहता है। फिर भी कभी ऐसा भी बनता है कि पहचान नहीं होती है और भक्ति अत्यंत होती है। वो अत्यंत भक्ति निष्काम रूप से कभी होती है तो मुमुक्षु की भूमिका की निर्मलता को ले आता है। दर्शन में इसका थोड़ा मंद और अधिक मंद होता है, ऐसा संभव है। और सामान्य भक्ति में से अपूर्वता तो पहचानने से आएगी, और अपने आत्म कल्याण का ये खास कारण है, इसके बिना कल्याण नहीं होगा ऐसा समझ में आएगा, इसकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी, तो भक्ति अत्यंत हो सकती है। एक कामना रहे एमनी प्रसन्नता प्राप्त થાય। वो ऐसी बात है कि वैसे तो सत्पुरुष राग द्वेष रहित होते हैं, न किसी के प्रति उनको राग करने का अभिप्राय है, न किसी के प्रति द्वेष करने का। लेकिन कोई जीव जब सन्मार्ग में आने के लिए पात्र होता है तो उसकी पात्रता पर उनको प्रसन्नता आती है। तो सत्पुरुष की प्रसन्नता जिसको चाहिए उनको ऐसा मालूम होना चाहिए कि हमारी पात्रता से ये प्रसन्नता स्वतः उत्पन्न होगी। ऐसे कोई रिझाने से कोई तरीका से, कोई रिझाने का कोई दूसरा तरीका है और सत्पुरुष प्रसन्न हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। और सत्पुरुष की कृपा दृष्टि को हो, प्रसन्नता को हो, ये पात्रता का सूचक है। और यही सम्यक दर्शन के मूल में वो चीज खड़ी है।
इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके इसी को भी सम्यक दर्शन कहने में आता है कि सत्पुरुष की कृपा दृष्टि वही सम्यक दर्शन है। वो कहने की शैली है कृपालु देव की, इसलिए वो कहा है कि मुमुक्षु जीव अपनी पात्रता को विशेष रूप से प्रकट कर सके, उनकी प्रेरणा उनको मिले, इसलिए उनको सम्यक दर्शन बोल दिया है। बात तो वो है कि ऐसी पात्रता से सम्यक दर्शन आएगा जब इस सत्पुरुष की प्रसन्नता होगी। आपने भी फरमाया कि कोई किसी जैसे मुमुक्षु की जितनी निर्मलता होती है कि भक्ति अत्यंत हो जाती है, निर्मलता आती है और मुमुक्षु पर ज्यादा हो जाता है। मान लो कि प्रत्यक्ष गुरु नहीं और परोक्ष गुरु भी इतनी बड़ी भक्ति करे तो इनको इन एब्सेंशिया ऐसे गाइडेंस मिला के सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? सम्यक दर्शन तो बिना सत्पुरुष तो स्वभाव के संस्कार वाले को ही मिलता है, जिसमें पूर्व में सत्पुरुष मिला हो और स्वभाव के संस्कार इसकी विद्यमानता में ग्रहण किया हो। दूसरे को अविद्यमानता में परोक्षता में कितनी भी भक्ति करे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि निर्मलता आती है तो वो कहीं फंसेगा नहीं, न भक्ति का उसको अहम आएगा न कहीं और जगह फंसेगा। और वर्तमान में उसको परोक्ष है सत्पुरुष तो भविष्य में प्रत्यक्ष उसको मिलने का एक इस प्रकार का कुदरती व्यवस्था हो जाएगी। इतना लाभ अवश्य है, नहीं लॉस नहीं है, भक्ति में लॉस नहीं है। આત્મા છું એમ પહેલા થવું જોઈએ, જેથી જોઈએ તે જ શ્વાસન નથી થતું, તે જ સ્પષ્ટ લખવાવાળા જરા સ્પષ્ટ કરે તેનો ઉપાય શું? તે જ શું નથી થતું? શબ્દ કોઈ વાત હે એમ પહેલા થવું જોઈએ, તે જ સ્થાપન નથી થતું, એમ સ્થાપન નથી થતું, તેનો ઉપાય શું? હું આત્મા છું એવું સ્થાપન તો શ્રદ્ધામાં થાય, શ્રદ્ધા આત્માને સ્વયંમાં સ્થાપે છે। તો સમ્યક શ્રદ્ધા થવા માટે શું શું કરવું જોઈએ તો આપણો રોજનો વિષય ચાલે છે કે સમ્યક શ્રદ્ધા થવા માટે પ્રથમ યોગ્યતામાં પાત્રતામાં આવવું જોઈએ અને સ્વરૂપ નિર્ણય સુધી પહોંચવું જોઈએ, એ જ એનો ઉપાય છે। આત્મકલ્યાણની ભાવના થાય અને પોતાના પ્રતિબંધ જ્યારે અવલોકનથી યા પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશથી દેખાય ત્યારે તેને તોડવાનો પ્રયત્ન થાય, તે આત્મકલ્યાણ માટે યોગ્ય પ્રયાસ છે। હા, ये आत्मकल्याण माटेनो योग्य प्रयास है। हिंदी में करूं छू, आत्मकल्याण की भावना हो और अपने प्रतिबंध जब अवलोकन से या प्राप्त उपदेश से दिखने में आवे तब उसको तोड़ने का प्रयत्न होवे तो आत्मकल्याण के लिए योग्य प्रयास है क्या? क्या हाँ, वो प्रतिबंध तोड़ने का जो प्रयास है वो वास्तव में आत्मकल्याण का ही प्रयास है। इसलिए प्रतिबंध को तोड़ने का तो प्रयास होना ही चाहिए। वो प्रतिबंध तोड़ने का योग्य प्रकार क्या होना चाहिए? वही आत्मकल्याण की भावना। आत्मकल्याण की भावना जितनी तीव्र होगी प्रतिबंध टूटते जाएंगे। अगर हमारी भावना में निर्बलता है तो प्रतिबंध हमारे पे सवार हो जाएगा, टूटेगा नहीं। वो भावना ही साधन है, भावना को बढ़ाना चाहिए, यही कारण से प्रतिबंध अवश्य टूटेगा। पाँच 6 मिनट है।
मुमुक्षु आपस में सत्संग करते हैं, उसका योग्य प्रकार क्या होना चाहिए? मुमुक्षु आपस में सत्संग करने में अपने परिणामों की चर्चा करें, ये योग्य प्रकार है। शास्त्र की गाथा लेकर के इसका अर्थ में भावार्थ में जाएं, इससे अधिक अच्छा प्रकार, योग्य प्रकार तो वो है कि अपने परिणामों की चर्चा करें, अपनी योग्यता का उसमें से नाप निकालें, वर्तमान अपनी योग्यता को समझें और इस योग्यता से एक कदम हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसका विचार विमर्श करें और आगे बढ़ते जाएं और पूर्णता को लक्ष्य में लेकर के ऐसे प्रवृत्ति करें तो ये सत्संग ज्यादा अच्छा रहेगा और ऐसे सत्संग से काफी निर्मलता भी आएगी। अनेक प्रकार के दुर्गुण जो मुमुक्षु की भूमिका में होते हैं वो नहीं होंगे और जो सद्गुण इस भूमिका में होने चाहिए वह होंगे। वो सद्गुण ऐसे हैं कि ऐसी चर्चा जिसको अपने मान सम्मान है वो कर नहीं पाएगा तो उसको मान छूटेगा और अपने परिणामों की चर्चा सरलता होने पर ही हो सकती है, बिना सरलता वाला भी वो नहीं कर सकता। तीसरा कि ऐसे परिणाम की चर्चा करने वाला ही संग में रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरों को वहां अपने परिणाम की चर्चा करनी पड़ेगी जो वो नहीं कर सकेगा, तो वो रहेगा नहीं, तो ऐसा सत्संग छूट जाएगा। तीसरा, ऐसे प्रकार की अंतरंग परिणामों की चर्चा करने वाले के प्रति उतनी आत्मीयता रहती है तो मुमुक्षु के प्रति जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ होने का अवकाश बंद हो जाएगा। आत्मीयता के कारण से दूरी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार का जो लाभ होता है वो ऐसे सत्संग से होता है। ये योग्य सत्संग का प्रकार है। पॉजिटिवली जो प्रोग्रेस है इसकी बात करें और नेगेटिवली जो गलतियां इसकी भी बात करें। दोनों बात करें, दोनों की बात करें। तो अगर पॉजिटिव में भी कोई क्षति होगी तो इसकी भी चर्चा हो जाएगी, पॉजिटिव साइड की। नेगेटिव की कोई चर्चा करने लायक हो तो वो भी हो जाएगी। और हाँ, और अपने आप में जो मालूम नहीं पड़ेगी वो बात दूसरे को मालूम पड़ सकती है। तो इस तरह भाई जी ने तो ऐसा लिया सत्संग में, निहाल भाई जी ने ऐसा लिया है कि परिणाम और अपरिणामी नहीं कहना, अपरिणामी और परिणाम कहना, अपरिणामी पे दृष्टि रखना, परिणाम पे दृष्टि नहीं रखना, उसका नाम सत्संग है, ऐसा लिया है। ठीक है, वो एकदम आगे के स्टेज में वो भी बात है। ये तो बात चल रही है, हमारे लायक सत्संग की बात चल रही है, वो हमारे लायक की बात तो नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो हम लागू कैसे करेंगे उसको। हमारा तो दृष्टि करने का अवसर ही बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, क्या करें। जहाँ खड़े हैं वहां से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। खड़े हैं इधर और हम हवा में चलें तो कैसे काम होगा। हवा में चलने से तो कोई काम नहीं होगा ना। तो इसका मतलब मार्ग दो हो गए थे। मार्ग दो नहीं है, दो अलग अलग स्टेज है। जिस स्टेज की चर्चा की है वो अलग स्टेज है, ये जो बात चल रही है वो अलग स्टेज की है। हम किस स्टेज में है वो तो पहले नक्की करें। आपने तो शुरू में फरमाया था कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। तो पूर्णता लक्ष्य में तो मैं तो परिणामी हूँ, परिणाम की बात ही नहीं, पूर्णता में मोक्ष पद है, सिद्ध पद है, आत्मपद नहीं है। तो क्या सुना आपने अभी तक और क्या पढ़ा मंगल प्रारंभ में। पूर्णता शब्द है वो स्वरूप वाचक नहीं है, ध्येय वाचक है, साध्य पद का वाचक है। वहां ऐसी बात है, आपको ख्याल में बात नहीं है। पर्यायवाचक है, द्रव्यवाचक नहीं है वहां पूर्णता। साध्य में और ध्येय में भी तो अंतर है ना। जी, साध्य और ध्येय, हाँ, अंतर होना चाहिए। ध्येय तो निःशुद्ध आत्मा, साध्य सिद्ध परमात्मा। साध्य और ध्येय कभी एक अर्थ में भी बोला जाता है, कभी आप कैसे हैं ऐसे अलग अलग अर्थ में भी बोला जाता है। दोनों बात है उसमें। हाँ, दोनों बात है। जब जहाँ जो प्रकरण चलता है वो समझना चाहिए, दोनों में आता है। परम कृपालु सद्गुरु जय राधे।